हाय लवली एरीज, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। ये February 2025 मंथ की टेरो कार्ड रीडिंग है। देख लेते हैं आपके लिए फेब का मंथ कैसा रहने वाला है। वाहिगुरु जी, प्लीज टेल मी हाउ इज द मंथ ऑफ February gonna be for our lovely Aries. Let me shuffle the cards. Okay, Page of Swords. Anything else, Vaheguruji? Aries के लिए 2025 Feb month, how's it gonna be? How's it gonna be? How's it gonna be for Aries? How's it gonna be for Aries? Alrighty, on top of the deck I got Two of Pentacles. Two of Pentacles. So juggling. What I'm seeing is juggle is a struggle because emotional balance थोड़ा सा off हो सकता है या you are taking care of a lot of things in your life, maybe two projects, maybe two jobs, maybe a job and a career. So there is like a little bit of struggle because you might end up feeling overwhelmed because of lots of work, because of more than you can handle you are doing those things, or because you are emotionally not good, you are emotionally, there is some sort of upheavals that are happening. So that's why you are not able to put your 100% when it comes to your finances and your career, is what I'm getting for you. Okay, आगे देखते हैं. So I got Page of Swords, I got the Hanged Man, I got Knight of Cups, the Hierophant, Six of Wands, I got the Wheel of Fortune, Moon card, Ten of Swords, I got Queen of Cups, Queen of Swords, Lovers, I got Temperance, I got Four of Wands, which is a very nice card to have. Two of Swords, Four of Cups, Seven of Swords, along with that Strength card. I hope everything is visible. So these are a lot of cards that I got for you. But I am seeing इस महीने में, फेब के मंथ में, कोई ना कोई डिसीट करेगा आपको. Deception, not faithful, unfaithful friend, unfaithful partner, unfaithful family member, someone is not genuine to you, और वो reality आपके सामने आ जाएगी that this person is just here to get something out of you. कोई चीज़ उनको आपसे मिल रही थी, इसीलिए वो आपके साथ थे. ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी इन द मंथ ऑफ February एंड यू विल डिसाइड टू पार्ट योर वेज. सेपरेशन, थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. ये पर्सन चीटर, लायर, स्टीलर भी हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करोगे. आपको लगेगा कि यार मैंने तो इस इंसान पे कितना ट्रस्ट, कितना भरोसा किया और इसने मुझे बैक स्टैप. अभी कार्ड देखो कैसा लग रहा है ना कि इसका तो बुरा हाल कर दिया है, इसको कहीं का छोड़ा ही नहीं है. सो यू माइट एंड अप फीलिंग दोज फीलिंग्स. अलॉन्ग विथ दैट आई एम सीइंग दैट यू विल फाइंड योर सेल्फ ऑन अ क्रॉस रोड्स इन द मंथ ऑफ February where you will have to pick up your sword and cut something and you have to see reality for itself. Take your blindfold off this month. Do not put things under the rug. Try to see everything for as it is. Okay, that's when you will able to make some decisions. Four of Cups से आप apology expect कर सकते हो. It's coming from someone that might have already hurt you, deceit you, wasn't honest to you. और ऐसा इंसान आपको सॉरी बोलेगा या आपको किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ February. तो ये चीज़ होती हुई दिख रही है. दिस थिंग विल कीप यू एजिटेटेड, एंग्री, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड. एंगर इश्यूज आपके हाइटन अप हो सकते हैं. आपको डील करना पड़ सकता है टफ इमोशन से, टफ लोगों से भी. ठीक है, ये मुझे वैसे इनर ज़्यादा लग रहा है कि आपको इनर कन्फ्लिक्ट, इनर बैटल, इनर इश्यूज से आपको डील करते हुए दिख रहे हो आप, और आप इस चीज़ से डील कर पाओगे क्योंकि ये
you have, you know, हम यहाँ पे देख रहे हैं this person is in white and they have infinity symbol above their head. So they have that potential, they have infinite possibility because they come from a place of innocence, they come from a place of utmost purity and security. So आप ये चीज़ें कर सकते हो, डिसीजन भी ले पाओगे कि आपको किस चीज़ को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ में. जो फेब का मंथ है, मैं अप्रैल बोलने वाली थी, ओके उसका कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है, बट एनी विच वे फेब का मंथ आपको फोर्स करेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, अपनी पर्सपेक्टिव को बदलने में, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, मनी को लेकर, लव को लेकर, ठीक है. एंड इसी के दौरान आप कोई नई चीज़ डिस्कवर करोगे लाइफ के बारे में, ठीक है. और लाइफ आपको फेब के मंथ में ही आप बिगड़ते और संभलते हुए दिख रहे हो. लाइफ बिगड़ती हुई, खत्म होती हुई, हारा हुआ महसूस करने के बाद आप एक बहुत कॉन्फिडेंट स्पेस पे दिख रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है लोग होंगे आपके पास जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी केयर करेंगे, जो आपको पेडेस्ट्रल पे रखेंगे, आपको बताएंगे, आपको याद दिलाएंगे दैट यू आर द किंग, दैट यू, ऑल्दो ये किंग का कार्ड नहीं है, बट दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन सच अ ह्यूज पोजिशन, तभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. अगर इस मंथ में आप कोई अपना काम भी करते हो, वायरल जाने के चांसेस हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में. अगर आप अपना कोई भी काम करते हो, आप अब्रॉड से रिलेटेड भी मे बी कोई प्लान करते हो, ट्रैवल वगैरह, इस मंथ में कुछ ट्रैवल प्लान्स आप प्लान करते हुए दिख रहे हो. कुछ वेटिंग पीरियड भी हो सकता है, आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़े. इस मंथ में आप फिर बैलेंस की तरफ, सोल्यूशंस की तरफ, क्योंकि और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइनमेंट में जाते हुए दिख रहे हो मुझे हैंडमैन से और द हेरोफेंट कार्ड से. एक स्पिरिचुअल, आप अपनी हर दिक्कतों के सल्यूशन ना स्पिरिचुअल रीजन, स्पिरिचुअल आंसर्स के थ्रू अपने आप को काम डाउन करते हुए, अपने आप को वो स्ट्रेंथ देते हुए दिख रहे हो जो इस मंथ में आपको चाहिए रहेगी. सो इफ़ यू कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी, यू गोना गेट द सल्यूशंस दैट यू आर लुकिंग फॉर, दैट यू वर वेटिंग फॉर. ओके, वो पेशेंस आपको मिलेगी, ठीक है. और इसी मंथ में आई एम सीइंग कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है. आप कहीं किसी प्लेस पे राइट, you will be at some place at the right time, at the right circumstances, you will say the right words, you will say the right feelings, and I'm seeing किसी ना किसी को तो आप एक पर्टिकुलर पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ. ओके, someone will express their emotions towards you. उनको क्या फील होता है आपके लिए, बहुत रोमांटिक जेस्चर के थ्रू वो आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को. लवर कार्ड यहाँ पे आ गया है, तो ये आपका कोई सोलमेट होगा. एंड राइट टाइम, राइट जगह वाली फीलिंग आ रही है विद द लक कार्ड, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, बिकॉज डेस्टिनी इज एट प्ले. दिस मंथ यू विल एंड अप मीटिंग अ सोलमेट and even expressing that soulmate, that how much they mean towards you, what sort of feelings they have for you, and you know it will be equal. Okay, so आप भी एक्सप्रेस करोगे, दूसरा पर्सन भी एक्सप्रेस करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस पे मुझे दिख रहे हो. यू आर नॉट टेकिंग एनी बुलशिट. जो भी चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही है, जो भी सिचुएशन, लोग, करियर, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही थी, आप उनको हटा के, काट के फेंक सकोगे अपनी लाइफ से. दैट्स वाई द डेस्टिनी इज प्लेइंग इन सच अ वे दैट दे आर ब्रिंगिंग यू द राइट टाइप ऑफ पीपल, राइट टाइप ऑफ लवर. ओके, एंड इफ अगर आप मैरिज का वेट कर रहे थे, स्टेबिलिटी का, पार्टनरशिप का, कमिटमेंट का, आपको इस महीने में वो भी मिलती हुई दिख रही है मुझे एरीज, because you are speaking your mind, you are showing how passionate you are as a lover and as an individual, है ना. and you believe in actions, you believe in saying things that you want to, that are going in your head. So that truth, that sort of like honesty is bringing, and that sort of clarity is bringing you a lot of love in your life and romance in your life. I want to use romance angel. Vaiguruji, please tell me Aries का फेब का मंथ कैसे रहने वाला है, 2025 का फेब का मंथ. दिस कुड बी द वन, या. एंड आई टोल्ड यू, यू आर मीटिंग समवन विद whom you are, but for that you will require to separate yourself from something which isn't working out for you, और वो आपको आइडेंटिफाई आप कर पाओगे इजीली, ठीक है. एंड वेडिंग का कार्ड भी आ गया है, एंड 4 ऑफ, मैंने आपको बताया ही, 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है, लेट मी सी कहाँ रख दिया मैंने, या
वो मैरिज का कार्ड होता है. इवन 6 of Wands फॉर मी, दिस इज ऑल्सो अ मैरिज का कार्ड. एक इंसान घोड़े पे बैठ कर आ रहा है ना. सो वही एनर्जीज दिख रही हैं इस मंथ में. या तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या आपको एक ऐसा पार्टनर, आप अपने स्पाउस से मिल जाओगे. ठीक है. सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे. अब हम कुछ चिट्स निकाल लेते हैं टू सी वाइब्रेटरी. प्लीज बताएं एरीज के साथ फेब के मंथ में क्या क्या होने वाला है. क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट कर रहे हो. स्पाइडर आया है, सो यू आर क्रिएटिंग समथिंग. स्पाइडर क्या बनाता है, एक वेब बनाता है, अपना घर बनाता है. तो आप कुछ सजाते हुए दिख रहे हो, एक रिश्ता सजाते हुए, एक घर सजाते हुए दिख रहे हो मुझे, विच विल बी देयर टू हेल्प यू सर्वाइव. यू आर फाइंडिंग सोल्यूशंस. You are becoming solution oriented, and solutions are knocking at your door. Libra, I am also a Libra, but a Libra season, a Libra person can be of significance. Survived. You will survive any sort of hardship or a battle that life will throw on you. April, oh my god. I started this video and मैंने इस वीडियो में ही कहा था, मैंने अप्रैल मंथ बोल दिया है. सो अप्रैल मंथ इज ऑफ सिग्निफिकेंस गाइज, वी आर नॉट किडिंग. ये आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन अ वन सिंगल शॉट. सो ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं. फ्रीडम, यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ. आप फ्री, अपने आप को आज़ादी दे रहे हो उन हर उस चीज़ से जो आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है. सेप्टेम्बर मंथ कैन बी ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है. Let's see. Pampered. Yeah, someone's gonna pamper you. You're gonna feel loved. You're gonna feel loved. Over. Something is over. Something isn't working out, as I told you already. So you need to see what isn't working out for you. You're gonna find the solutions, and you will survive any sort of thing that is causing you issues, because all you are meant is to be free. Yeah, so that's it Aries. I love this reading for you. I hope this helps you a lot moving into February 2025. If you have any questions, you can reach out to me through the description box. You can find a Gmail and a number given in the description box. Till then, take care, and I love you guys. Bye.